Good morning, my star students. How are you all? I hope you all are fine and safe too at your home. So, students, today we are going to start chapter 17 livelihood. ये chapter civics का है, right? Yes. One more thing I want to give you the information about that is still one chapter is left in the history, right? But that chapter we are going to take in our next video. When we will complete this chapter, then after we will take one more chapter that was remaining in the history, that was the glory of Bharat Varsha. वो हिस्ट्री का एक चैप्टर है, वो जो रिमेनिंग है वो हम ले लेंगे, राइट? बिफोर दैट वी थिंक दैट अवर हिस्ट्री इज कंप्लीटेड, बट नो, वन मोर चैप्टर इज लेफ्ट, राइट? But now we will take that chapter afterwards. First we will start the civics. In that we are going to learn chapter 17, that is livelihood, right? तो आज हम हमारा चैप्टर livelihood स्टार्ट करने वाले हैं. इस चैप्टर में हम क्या समझेंगे? इस चैप्टर में हम समझेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइवलीहुड. कि लाइवलीहुड होता क्या है? इट मीन्स द पर्सन हु इज लिविंग एंड हाउ दे आर लिविंग, व्हाट दे आर अर्निंग, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बताऊं कि एक विलेज लाइफ है, तो विलेज लाइफ में लोग कैसे रहते हैं, उनका व्यवसाय क्या होता है, लाइक ऑक्यूपेशन क्या है उनकी, वो कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, उनका रहन सहन क्या होता है, वो हम समझेंगे. सिमिलरली वही रूरल लाइफ जैसे समझेंगे, वैसे ही हम समझेंगे व्हाट इज अर्बन लाइफ. कि अर्बन लाइफ में लोग कैसे जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और उनकी इनकम वो अर्न कैसे करते हैं, राइट? तो हम जो है वही समझने वाले हैं कि पर्टिकुलर मीनिंग क्या होता है लाइवलीहुड का, कि हाउ टू अर्न इन द विलेज एंड हाउ टू लिव इन द विलेज and what difficulties you are facing in the village and what facility you are getting in the village. Similarly, this life is we will learn about the urban life. जैसे कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि रूरल लाइफ एंड अर्बन लाइफ क्या होती है. रूरल मीन्स जो पर्सन विलेज में रहते हो, और अर्बन मीन्स जो लोग बाहर रहते हो, राइट? सिटी में रहते हो, उनको अर्बन बोलते हैं, एंड रूरल बोलते हैं जो लोग विलेज में रहते हो. ये तो हमने पहले से ही प्रीवियस चैप्टर में हमने समझ लिया है. आज उन लोगों का रहना कहना कैसा होता है, वो क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, लाइक उनका इन्वायरमेंट कैसे होता है, वो हम इस चैप्टर में समझेंगे. एंड वन मोर थिंग, इस चैप्टर में ना छोटी छोटी स्टोरी लाइक दे रखी होंगी, एंड उनके हिसाब से हमें वो चैप्टर को क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है. ओके, तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया व्हाट इज लाइवलीहुड. लाइवलीहुड मीन्स कि व्हाट इज द इट मीन्स इन शॉर्ट इट मीन्स ऑक्यूपेशन, राइट? व्हाट दे आर, हाउ दे आर लिविंग, हाउ दे आर अर्निंग in the rural life or in the urban life, right? So today we are going to start a livelihood chapter 17, that is civics. A person's life is affected by his and her surrounding. We see a lot of diversity around us. The most important thing about the village life, that is the villager use a minimum facilities. They are connected with ecosystem, economic system in different ways. Most of the people are engaged in farming. Local arrangements and local environment directly affected the village life. Village life means the arrangement of livelihood and environment. As I told you, how they are living and what is the environment of that persons, and what they are earning. Main thing is that what they are earning. Apart from the lives of village, people will discuss about their facilities and problems. एज आई टोल्ड यू कि इसमें हम ये भी समझेंगे कि उनकी फैसिलिटीज़ क्या होती है और वो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, वो भी हम समझेंगे. Our country India has a wonderful unity in diversity. Our country has a unique identity amidst a religion, language, region and economic diversity. There are 5,000 cities and about 27,000 small and big towns. People came to the cities for employment from surrounding village. People from the states also came to the city or towns. Our constitution grants a right to settle and develop the peacefully anywhere in India. People living in
cities are connected with various occupation. Some people have connection with more than one occupation. We can see people around us. Everyone need to create an income to earn a livelihood for family. People earn a livelihood by service, business or labor work. जैसे कि मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द पर्टिकुलर मीनिंग ऑफ लाइवलीहुड, इट मीन्स ऑक्यूपेशन, राइट? कि भाई किस तरह से अर्बन लाइफ में लोग कमाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और विलेज लाइफ में वो कैसे ऑन करते हैं और उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस होती है। जैसे कि अर्बन लाइफ में एक जगह काम मिल गया तो हम दूसरी जगह भी ले सकते हैं, तो यही सेम सेम फैसिलिटीज़ क्या रूरल लाइफ जो है, जो विलेज में लोग रहते हैं उनको मिलती है, वो क्या फैसिलिटीज पाते हैं ऐसी जो अर्बन लाइफ के लोग जीते हैं? क्या वो कौन सी वो लोग जो है डिफिकल्टीज फेस करते हैं? जैसे कि इंडिया में आप जानते हैं कि मोर देन 5,000 सिटीज, 5,000 से ज़्यादा सिटीज़ है, 27,000 से स्मॉल और बिग टाउन्स है। तो उनका रहना कहना कैसा है, उनका खाना पीना कैसे है, वो किस तरह से रहते हैं, वो क्या डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में लर्न करेंगे। दैट इज लाइवलीहुड, राइट? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विलेज लाइफ, राइट? हम पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे? विलेज लाइफ से स्टार्ट करेंगे, राइट? विलेज लाइफ। Disa is a city in Banaskata district. Little far from Disa, there is a village named Ranpur. Most of the people here are associated with farming. Some people do farming while some are busy in cattle rearing. In extra time which is spread from farming, some people make tools, some stitch clothes. One man runs a tractor. He goes for plowing when he is cold. In spite of being a small village, people do not have to go to the city for haircut or shaving. There are many small and big shops. Slipper and clothes are available in this shop. Medicines for fever, cough and cold is available in the village shop at the time of need. Everybody grows potatoes and millet here and in the surrounding village. अभी देखो, डीसा जो है एक सिटी है, ठीक है, इन डीसा सिटी है, कहाँ कौन सी? इन बनासकाठा डिस्ट्रिक्ट, राइट? अब वहाँ पे एक रानपुर करके एक छोटा सा गांव है, ठीक है। अब वहाँ पे वो लोग कैसे रहते हैं? वहाँ पे ऑलमोस्ट जो लोग हैं वो फार्मिंग से जुड़े हुए हैं, यानी कि खेती बाड़ी से, राइट? वो खेती बाड़ी से वो जुड़े हुए हैं। थोड़े से जो लोग हैं वो बिजी होते हैं कैटल रेयरिंग में, राइट? थोड़ा जो है वो एक्स्ट्रा टाइम करते हैं किसमें? तो स्प्रेड फार्मिंग वर्क का भी कोई खेती बाड़ी का तो होता है, आपको तो पता है कितना सारा खेती में काम वगैरह होता है, वही करते रहते हैं। काफ़ी लोग जो है वो टूल्स जो होते हैं उनका काम करते रहते हैं, लाइक सम पीपल मेक्स अ टूल सॉरी, टूल्स वगैरह जो बनाने की चीज़ें होती है, लाइक नॉर्मल छोटा घना काम करते रहते हैं। इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं कि गांव की लाइफ अगर आपने कोई पिक्चर वगैरह में देखी हो तो किस तरह से होती है, एकदम छोटी सी, एकदम अपने ही लाइफ में जीते हो, राइट? कोई गाय को चरा रहा है, कोई बकरियों को चरा रहा है, कोई फार्मिंग में जा रहा है, देन आफ्टर कोई छोटे मोटे टूल्स बना रहा है, राइट? और काफ़ी लोग जो होते हैं जो कपड़े घर पे ही सिलते रहते हैं, भाई किसी को ड्रेस सिल के दिया, लाइक अ टेलर वर्क, किसी के कपड़े थोड़े से फट गए हो या कोई सेटिंग करनी हो थोड़ी सी, तो वो सिलते रहते हैं। फिर कोई होता है जो ट्रैक्टर्स वगैरह चलाता रहता है, कोई प्लम्बर का काम करता रहता है, राइट? एंड वहाँ पे आपने नोट भी किया होगा कि छोटी छोटी हेयर कट और क्या कहते हैं कि भैया ना ड्रेसेस की शॉप्स होती हैं, छोटी छोटी एकदम, ऐसे अपन को गांव में बड़ी बड़ी मॉल की तरह नहीं मिले, बट एकदम छोटी छोटी ड्रेसेस की शॉप्स वगैरह होती है और वहाँ पे वो काम करते रहते हैं। देन आफ्टर आपने देखा होगा कि छोटी सी जूतों की, चप्पलों की वो भी शॉप होती रहती है। एंड वहाँ पे क्या कहते हैं कि मेडिसिन्स भी हो, लाइक कोल्ड कॉफ इतनी नॉर्मल हो गई हो तो वहाँ पे वो भी मिल जाती है। नॉर्मल मेडिसिन जो मेडिकल की शॉप्स वगैरह होती है वहाँ पे वो भी मिल जाती है। लेकिन आपने देखा होगा कि भी एकदम उनका व्यवसाय, उनका खाना पीना एकदम छोटे
लिमिट पीरियड में होता है। लाइक अ सिटी आपको बड़े मॉल या बड़ी बड़ी शोरूम्स जैसे दुकानें वगैरह वो आपको वहाँ पे मिलेगी नहीं। Tailor, carpenter, barber, and blacksmith are also available in this village. Along with their occupation, they are also connected with farming and farm labor. One young man has a metal shop for tea and snacks. Passers-by stand here more in a number than village people do. For tea and snacks, some farmers grow vegetables throughout the years, while some other farmers prepare orchards for growing pomegranates and other fruits. People are seeing growing fruits, flowers, vegetables in this village. अभी देखो, ये सब जो काम होता है स्लीपर्स का, देन आफ्टर क्या कहते हैं मेडिसिन्स का, और छोटी छोटी शॉप्स क्लोथ्स की, वो तो आपको मिलेंगी, बट अलोंग विथ आपको टेलर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, देन आफ्टर कारपेंटर, बार्बर, ब्लैकस्मिथ्स जो हैं वो भी आपको गांव में मिल जाएंगे, राइट। फिर आपको काफ़ी ऐसी शॉप्स भी मिलेगी गांव में जो चाय वगैरह जो होती है, छोटे छोटे स्टॉल्स खड़े रखती है, एंड स्नैक्स, और उनके साथ थोड़े से स्नैक्स वगैरह भी रखते हैं। जैसे कि कोई भी पासर्स, मतलब लोग जाते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, कोई बसेस वगैरह में आते जाते रहते हो, तो उनको इजीली क्या मिल जाए, चाय और उसके साथ स्नैक्स भी मिल जाए। आपने कई जगह देखा होगा कि लाइक कोई विलेज वगैरह में हमारी बस वगैरह रुकती है, तो ऐसी जगह पे वो रोकते हैं जहाँ पे चाय और स्नैक्स मिलते हो, राइट। हाईवे के साइड या हाईवे के अंदर के कॉर्नर के साइड ऐसी जगह पे रखते हो जहाँ पे आपको नॉर्मली ये सारी चीज़ें मिलती हो। तो वो क्या होते हैं, वो छोटे छोटे गाँव ही होते हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें रेगुलर मिलती रहती हैं। तो उससे क्या होता है, उनका डेली का जो गुजारा होता है, जो अर्न वो करते हैं, वो चलता है। सम जो फार्मर्स जो होते हैं, काफ़ी फार्मर्स जो होते हैं, वो तो वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं थ्रू आउट द ईयर्स ऑल्सो। एंड काफ़ी जने होते हैं जो फ्रूट्स वगैरह भी जो होते हैं फार्म करते हैं एंड प्रिपेयर करते हैं, और वो भी उगाते रहते हैं, क्योंकि लोग देखें जिस तरह से उनको समझ में आए, तो क्या होता है कि उनसे उनकी अर्निंग होती है और वो बेचते भी हैं। तो ये पूरा का पूरा क्या था, गांव के बारे में है, राइट। कि टेलर, कारपेंटर, बार्बर, ब्लैकस्मिथ, ये सब आपको मिलेंगे। अलोंग विथ आपको काफ़ी लोग ऐसे मिलेंगे जो फार्मिंग के साथ जुड़े हुए हैं। इवन दो ये सारे लोग जो है फार्मिंग के साथ तो कनेक्टेड होते ही होते हैं, बट उनके साथ वो एक्स्ट्रा काम भी लाइक टी का, स्नैक्स का, देन आफ्टर कारपेंटर का, इन सब का भी करते रहते हैं, राइट। यू कैन सी हियर द पिक्चर। कोई टेलर देखो कोई कपड़े सिल रहा है, कोई है ना क्या कहते हैं कि भाई घास जो होती है राइट वो लेके जा रहा है, कोई अपने वर्क पे जा रहा है। इस तरह से वो क्या करते हैं, अपनी लाइफ गुजारते हैं। लेबर वर्क एंड लाइफ इन द विलेज। अब लेबर वर्क कैसा होता है एंड लाइफ इन द विलेज कैसे होती है, राइट ना। एवरीबडी कॉल हर मधुबा। जो अभी वहाँ की लेडी है उसको हम क्या बुलाते हैं, मधुबा। She lives in Malpur village and got married in the same village. She and her husband work together in the farm and of a big farmer. अभी देखो, एक मधुबा, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि इस चैप्टर में हम छोटी छोटी स्टोरीज वगैरह भी पढ़ेंगे कि विलेज की लाइफस्टाइल और उनका लेबर वर्क क्या होता है। अब मधुबा करके एक लेडी है जो मालपुर विलेज में रहती है, जिसने शादी भी उसी विलेज में की। अब वो और उसका हस्बैंड दोनों रोज सुबह एक फार्म में जाते हैं, बिग फार्मर में फार्मिंग करने, राइट। आफ्टर कंप्लीटिंग हाउस होल्ड चोर्स बोथ ऑफ देम गो टू द फार्म फॉर लेबर एट 8 o'clock in the morning. They have two daughters who are studying in the government school of Valach. Monji Bhai is the name of a big farmer. He was 20 acres of land. Madhuba work here for livelihood. She works from 8 o'clock morning till 4 o'clock in the evening. She sows the seeds in the farm. She weeds and does the work also. After working whole day, Madhuba gets a wage in the evening. It is difficult to find out a work for every day, whether it is the farm work and other work. Once she did not get a work for many days together, hence she had to borrow money from Luigi Bhai.
she was in urgent need of money since her younger daughter fell sick and it is necessary to return money. During this period, she did not even get a work, so she sold her anklets to return money to Lovji Bhai. This happens many times. In absence of farm work, she used to do work in other farms as well as in stones mines. She, since she is old, she can not do more work. She gets exhausted. Hence, her husband help her in her household chores. They come back home in the evening, complete household work, and prepare a meal, and then they eat. There are many such a people in the village who do not own their land. Some people have a small piece of land. Some smaller landholders are dependent on rainfall for farming. Some people have to migrate to other places for getting labor where there is no रेन. अब देखो, मधुबा करके एक जो लेडी है, राइट, वो डेली वो और उसके हस्बैंड जाते हैं वर्क करने, और उसको क्या है, 2 डॉटर्स हैं, राइट, और वो उनकी 2 डॉटर्स हैं, वो कौन सी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है. अभी मधुबा और उसके हस्बैंड डेली मॉर्निंग को 8 o'clock को जाते हैं वर्क करने एंड शाम को 4 बजे वो फ्री होते हैं, राइट. उसके बाद वो सीड्स को देखती है, उसको पूरा का पूरा साफ करके निकाल के एकदम प्रॉपर करके जब वो घर के रिटर्न होती है तो मधुमा को उसकी वेज मिलती है. वेजिस मतलब डेली के हमें जितना डेली पे जितना हमें अर्न कर रहे हो वो डेली वेजिस पे मिलते हैं. लाइक हम डेली जाएं तो हमें 100 रुपये 200 रुपये उस हिसाब से हमें वर्क मिलते हैं. मतलब वेजिस इट्स शॉर्ट कि हमें मंथली सैलरी नहीं मिलती, डेली सैलरी मिलती है. जितने घंटे आप काम करो उतने घंटे आपको पैसे मिलेंगे, राइट. उस हिसाब से वर्क होता है. तो जैसे ही उसका काम कंप्लीट हुआ, उसने क्या किया, उसको वेजिस मिले. वेजिस मतलब जितना उसने काम किया उस हिसाब से उसको पैसे मिले, राइट. बट समटाइम क्या होता है कि हमें 12 मंथ्स ही फार्मिंग का वर्क नहीं मिलता है. जैसे कि आपको भी पता है कि थ्रू आउट जो ईयर होता है हमारा, उसमें हमें हर एक मंथ में 3 मंथ 4 मंथ ही एक फ्रूट की या एक सब्जी की या कोई भी एक ही टाइम पे उसकी क्या होती है, ग्रोइंग होती है. देन आफ्टर 12 मंथ ही वही का वही फ्रूट नहीं मिलता है, 12 मंथ ही वही की वही सब्जियां नहीं मिलती है. नो डाउट जो लोग उगाते वगैरह है वो तो डिफरेंट केमिकल्स वगैरह डाल के उगाए, बट 12 के 12 महीना हमें सेम सब्जियां सेम फ्रूट्स नहीं मिलते. तो क्या होता है, डिफ़िकल्टी कब आती है, जब उनको फार्मिंग का टाइम कंप्लीट हो जाए. जैसे कि फॉर एग्जांपल वो मैंगो का काम करने जाते हो, तो मैंगो वो कैसे देखने का देख काम करने का क्या हो, जैसे भी हो देख के आए तो 4 मंथ्स में उनका काम तो कंप्लीट हो जाए. उसके बाद वो क्या करें. तो सिमिलरली मधु को भी कोई वर्क उसके बाद था नहीं, राइट. उसका काम फार्म वर्क कंप्लीट हो गया, उसके पास पैसे नहीं थे, पर उसको क्या चाहिए थे, पैसे चाहिए थे. क्यों, क्योंकि उसकी डॉटर जो थी वो बीमार पड़ गई थी. अब उसकी डॉटर बीमार पड़ गई थी तो उसको क्या चाहिए था, पैसे चाहिए थे, पर उसके पास पैसे थे नहीं. तो उसने क्या किया, उसने पैसे लिए किसी से. किससे लिए, लवजी भाई से लिए. अब लवजी भाई जो है उसने क्या किया, उसने उससे पैसे लिए क्योंकि उसकी डॉटर क्या थी, बीमार थी. अब उसको पैसे चाहिए थे तो वो कुछ भी कर सकती है, उसकी डॉटर बीमार थी तो उसने उसे पैसे दिए. बट उसने उसको ऐसे बोला कि आई विल पे यू विद इन 1 or 2 months. जैसे ही उसको काम वगैरह मिलेगा तो वो आपको पैसे रिटर्न कर लेगी. बट हुआ क्या कि वो काम पे वगैरह पे जाती तो थी, पर इतना फिर वो अर्न नहीं कर पाती थी क्योंकि सिमिलर उस प्लेस पे तो कुछ काम था नहीं, तो और कहीं गई एंड उसने क्या किया, काम वगैरह जो है लिया. बट हुआ क्या कि वो काम उसको इतना मिला नहीं, इतने अर्न वो नहीं कर पाती थी. तो क्या हुआ, उसको जो लवजी भाई जो थे उसको पैसे तो देने ही थे कंपलसरी क्योंकि उसने उससे बोरो किए थे. तो उसने क्या किया, अपनी एंकलेट्स जो है वो बेच दी, राइट.
उसने अपनी एंकलेट्स बेच के उसको पैसे दे दिए। लाइक कोई होता है ना कि सोना वगैरह होता है, कोई बैंगल्स बेच देता है, कोई नोस रिंग बेच दे, राइट। इसी इसी तरह से उसने अपनी एंकलेट्स बेच दी और उसने वो चीज़ बेच के उलूजी भाई से जो उसने पैसे लिए थे ना उसको दे दिए, राइट। तो इसमें ऐसे बता रहे हैं कि ऐसा तो गांव में हर एक के साथ होता है। जैसे कि डेली रोज वेजिस पे वर्क करने जो लोग जाते हो तो उनको कभी कभार नहीं भी काम मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक क्या कहते हैं कि भाई घर बन रहा है तो वहाँ पे लेबर्स बहुत सारे चाहिए। तो उस टाइम पे काफ़ी लेबर्स आ गए पर घर बनने के बाद उनके पास अब कोई काम नहीं है। वो घर तो बन गया, अब वो दूसरा काम जब तक ढूंढे, वहाँ पे जाए, सेटल हो, उस हिसाब से उनको पैसे मिलेंगे, राइट। तो वो डेली वेजेस पे काम करती थी बट वो क्या हुआ कि वो तो उसको मिला ही नहीं, बस कंप्लीट हो गया। तो अब जहाँ पे कहीं और जाए, कहाँ पे वो काम वगैरह करे तो उसको पैसे मिले ना। तो सिमिलरली ऐसा ही हुआ, वहाँ पे उसको प्रॉपर काम मिला नहीं और जितना मिलता था, राइट, उससे उसने कैसे भी करके लवजी भाई को उसको पैसे तो रिटर्न करने ही थे, तो उसने अपनी एंकलेट्स बेच दी। तो इसमें ऐसे बता रहे हैं कि भाई ऐसा तो काफ़ी लोगों के साथ गाँव में होता है कि भाई और डेली वेजेस पे काम कर रहे हो, फिर उनको इतना अर्न ना हो और फिर दूसरे कहीं जगह पे वो जब तक सेटल्ड हो तब तक तो उनको कुछ ना कुछ ढूंढना ही पड़ता है। तो काफ़ी जो लोग होते हैं तो क्या करते हैं कि माइग्रेट कर डालते हैं काम के लिए, एक मतलब विलेज से सिटी में आते हैं काम के लिए, क्योंकि उनको डेली वेजेस चाहिए, डेली अर्निंग चाहिए। तो काफ़ी लोग तो ऐसे होते हैं जहाँ पे वो डेली अर्न करने जाए, या काफ़ी लोग तो ऐसे होते हैं जहाँ पे लेबर वर्क मिले, जहाँ पे रेन ना हो, या रेन होती हो तो पर्टिकुलर होती हो तो तब तक उनको जो हो पैसे वगैरह मिल जाए, राइट। तो ये पूरी किसकी स्टोरी हमने पढ़ी, मधुबा की पढ़ी, है ना। हमने मधुबा की स्टोरी में यही पढ़ा कि किस तरह से वो काम लेने जाती थी, देन आफ्टर किस तरह से वो काम करती थी, उसकी 2 डॉटर्स थी, वो वो स्कूल में पढ़ती थी, गवर्नमेंट स्कूल में। एंड देन आफ्टर उसके बाद उसने क्या क्या फेस किया, उसकी डॉटर बीमार हो गई तो उसको कैसे भी करके पैसे चाहिए थे, फिर उसने किसी से बोरो किए, फिर उसके पास उसको पे करने के लिए वो नहीं थे तो उसने अपनी एंकलेट्स बेच दी एंड उसको पैसे दे दिए। सो दिस इज द लाइफ ऑफ हुज, दिस इज द लाइफ ऑफ मधुबा, राइट। नाउ फार्मिंग, कैटल rearing एंड लाइवलीहुड। फार्मिंग, कैटल rearing एंड लाइवलीहुड, अभी ये हम पढ़ेंगे वो दूसरे पर्सन्स की स्टोरी पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ी मधुबा की, अब हम पढ़ेंगे पंदरवाड़ा विलेज के बारे में, सलमान की स्टोरी, राइट। वहाँ पे फार्मिंग कैसे होती है, कैटल रेयरिंग होती है और उनका रहना कैसा होता है, वो क्या अर्न करते हैं, राइट, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो पंदरवाड़ा इज अ स्मॉल विलेज। पंदरवाड़ा जो है वो भी एक छोटा सा स्मॉल विलेज है। सलमान lives here. Salman and has his own farm. Salman has a 10 acres of land. He himself does farming in his farm. Whenever he need help, he take a help and continue farming. He pay for this help. He bring a seeds and fertilizer and make from market dealer lend his seeds and fertilizers. He return money to the dealers when the crop is harvested. When the rest income he make, he is living for 7 to 8 months. To make a living for rest of months, he generates the money through cattle rearing. Salman has a 1 cow and 2 buffaloes. He generates required income from their milk. Salman sells milk to the cooperative society. He makes up for his living farm for this incoming for remaining 4 months. Sometimes Salman work in the industries for nearby city to earn livelihood through the retail work. अब यहाँ पे एक सलमान करके लड़का है जिसको 10 एकड़ खुद की जमीन है और वो खुद ही अपनी जमीन में हार्वेस्ट करता है, को क्रॉप को फार्म करता है और पूरी ही देखभाल करता रहता है। अब जब भी उसको लोगों की ज़रूरत होती है काम के लिए तो वो लोगों को बुला भी लेता है एंड लोगों को बुलाने के बाद वो वहाँ पे उनको काम देता है एंड उनको उनका वो पे कर डालता है।
राइट। फिर जो भी सीड्स, जो फर्टिलाइजर्स, जो भी होता है वो देता है डीलर को। देन आफ्टर जो क्रॉप होते हैं हार्वेस्ट होते हैं और वो उससे क्या करता है, रेस्ट अपनी इनकम बनाता है। इन शॉर्ट, हार्वेस्टिंग करता है प्रॉपरली उसको फार्म करता है, हार्वेस्ट करता है एंड वो बेचता है अपना। देन आफ्टर उसका काम 7 से 8 मंथ है वो चल जाता है आराम से। बट 7 से 8 मंथ तो ईयर में मंथ्स नहीं होते, ईयर में मंथ्स होते हैं 12 मंथ्स। फॉर एग्जाम्पल 8 मंथ लेके चलो तो पीछे कितने मंथ्स बचे, और 4 मंथ्स बचे, राइट। तो उन 4 मंथ्स में वो क्या करे, तो वो सलमान जो है उसने अपने यहाँ काऊ और बफेलो भी पाल के रखी है, जिससे वो क्या करता है, दूध निकालता है। बाकी के रेस्ट जो 4 मंथ्स होते हैं जिसमें उसको कोई वर्क नहीं होता, तो वो क्या करता है, उसने काऊ और बफेलोस पाल के रखी है, उससे उसमें से वो दूध निकालता है। दूध निकाल के वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है ना, लाइक सोसाइटीज जहाँ पे हम रहते करते हैं, वहाँ पे वो दूध बेचने आता है। तो बाकी के उसके जो 4 मंथ्स है वो इजीली अर्निंग के निकल जाते हैं। पर कभी कभार वो कोई नियर बाय सिटी में इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पे लेबर वर्क करने का होता है, वहाँ पे वर्क करने भी जाता है और इनकम कमाता है। मतलब उसका जो लाइवलीहुड है वो वो मतलब थ्रू रिटेल वर्क, टू अर्न हिज लाइवलीहुड थ्रू द रिटेल वर्क। मतलब वो उसका अर्निंग लाइक ऑक्यूपेशन, पैसा कमाने के लिए वो अर्न भी करता है। तो नियर बाय सिटीज़ वगैरह में भी जाता है जहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह हो, वहाँ पे इंडस्ट्रीज में वर्क भी कर लेता है। तो ये किसकी स्टोरी थी, ये सलमान की स्टोरी थी, जिसके पास अच्छी सी अपनी ज़मीन भी है। वो 7 से 8 मंथ वहाँ पे काम भी करता है, फार्मिंग करता है, फर्टिलाइज़र करता है, देन आफ्टर बेचता भी है डीलर को। बट फिर क्या होता है, अगर उसको उस काम में किसी की नीड होती है तो वो लोगों को भी बुला लेता है एंड वहाँ पे काम भी करता है और लोगों को वहाँ पे पे भी करता है। जिस जिस टाइम पे वो लोगों को बुलाता है उस टाइम पे वो लोगों को पे भी कर डालता है। फाइन। फिर उसका वो जो वर्क है वो 7 से 8 मंथ ही चलता है। उसके बाद वो क्या करता है कि उसके यहाँ काव बफेलो पाली हुई है, राइट। उसमें से बाकी के रेस्ट ऑफ 4 मंथ्स इनकम के लिए वो क्या करता है, वो उनमें से दूध निकालता है एंड सोसाइटी में बेचने लगता है, राइट, जिससे उसके बाकी के 4 मंथ्स का अच्छी तरह से गुजारा हो जाए। एंड देन आफ्टर वो कहीं नियर बाय इंडस्ट्रीज में भी जाता है जहाँ पे उसको वर्क मिल जाए काम करने के लिए, राइट। तो ये किसकी स्टोरी थी स्टूडेंट्स, तो ये स्टोरी थी हमारे सलमान की। उससे पहले हमने किसकी स्टोरी पढ़ी, मधुबा की पढ़ी। देन आफ्टर हमने सलमान की स्टोरी पढ़ी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रामनगर विलेज की स्टोरी एंड उसका नाम है जगा भाई, राइट। एंड दूसरी स्टोरीज भी हैं जिस हिसाब से वो वर्क करते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आज हमने 2 स्टोरीज समझी एंड लाइवलीहुड का मीनिंग क्या होता है वो समझा, बाकी के हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।